Good morning, students. Today we are going to start our new chapter, chapter number 5, magnetism and matter. Right? Now, first of all, we have to know what is the cause of magnetism. Any substance performing the activity of magnet, that is called magnetism. Now, what is the cause of magnetism? Dear students, you have already gone through the topic the magnetic field due to circular loop of current, right? In Biot-Savart's law application, we have already gone through this topic. Now this is a loop, this is a circular loop, this is also a circular loop. In the first circle, the current is flowing in anti-clockwise direction, right? This is anti-clockwise direction. If it is flowing in the anti-clockwise direction, the front side of this loop will act as a north pole, right? Now if there is a north pole, so there should be a south pole. It means the back side of the loop will perform as a south pole, right? But if the current flowing in the clockwise direction in a circular loop, then it will behave like a south pole, right? This is south pole. If this is south pole, front side is south pole, तो बैक साइड शुड बी नॉर्थ पोल. ठीक है, तो किसी भी लूप में अगर करंट फ्लो होती है तो इट विल परफॉर्म और इट विल एक्ट एज ए मैग्नेट. सिमिलरली इन द एटम, in each atom the electrons flows or electron moves in a circular orbit. If these electrons moving in a circular orbit, the loop will act as a current loop, and if it is a current loop, it means atom is a magnet, right? So every substance is made of tiny units called atoms. Each atom has electrons, particles that carry electric charges. For example, electron is negatively charged. Spinning like a top, the electrons circle the nucleus or the core of an atom. Their movement generates the electric current, right? If electrons are moving, it means current is flowing. If electrons are moving in clockwise direction, the current will produce in anti-clockwise direction. You know better that the direction of electric current is always in the direction opposite to the motion of the electron, right? Causes each electron act like a microscopic magnet. It means each atom will behave like a magnet. If a substance is made of large number of atoms, it means every matter is magnetic material, right? But every material do not behave like a magnet. Now what is the reason? Reason is that these tiny magnets or atomic magnets forms the closed loop. For example, this is an atom which is behaving like a magnet. देखिए ये जो एरो होता है, इसका जो हेड होता है वो हम नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट करते हैं, जो टेल होती है वो साउथ पोल को रिप्रेजेंट करते हैं. फॉर एग्जांपल दिस इज ए एटॉमिक मैग्नेट. तो एक एटॉमिक मैग्नेट ये हो गया, दूसरा वाला जो है वो इस तरीके से आ गया. अब इसका साउथ इधर है, नॉर्थ इधर है, राइट? हेड इधर है. तीसरा आ गया इस तरीके से. अब देखिए पहले वाले मैग्नेट के नॉर्थ को इसके साउथ ने न्यूट्रलाइज कर दिया और दूसरे वाले के नॉर्थ को तीसरे वाले के साउथ ने न्यूट्रलाइज कर दिया, जबकि तीसरे वाले के नॉर्थ को पहले वाले के साउथ ने न्यूट्रलाइज कर दिया. तो इन तीनों एटम्स का जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो जीरो हो जाए. ठीक है ना? इसी तरीके से एटॉमिक या मैटर के अंदर बहुत सारे एटम्स होते हैं और वो एक क्लोज लूप बना लेते हैं. क्लोज लूप बनाने के कारण वो अनमैग्नेटाइज हो जाता है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर मैग्नेट्स नहीं है,
उसके अंदर एटॉमिक मैग्नेट्स होते हैं, लेकिन वो क्लोज लूप बना लेते हैं, इसलिए जो है नेट मैग्नेटिक फील्ड उनका 0 हो जाता है। तो दिस इज द कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म, राइट। नाउ व्हाट इज मैग्नेटिज्म? The phenomena of attracting magnetic substances like iron, nickel, cobalt। अगर कोई भी सब्सटेंस आयरन को, निकिल को या कोबाल्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म, राइट। अ बॉडी possessing द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड मैग्नेट। अगर कोई मटेरियल जो है वो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी शो कर रहा है तो उसे हम कहेंगे मैग्नेट। अ मैग्नेटिक पोल is a point near the end of the magnet where magnetism is concentrated। देखिए जैसे मैग्नेट होता है तो आपने देखा होगा, जैसे ये बार मैग्नेट है, इसके यहाँ पे एक सेंटर्स होते हैं, 2 सेंटर्स, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में। तो ये क्या करते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल्स को यानी आयरन पाउडर को अट्रैक्ट करते हैं। केवल इन एंड्स पे ज़्यादा होता है अट्रैक्शन, मैग्नेटिक मटेरियल यानी आयरन, निकल या कोबाल्ट, इन पे ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। तो दीज एंड्स आर कॉल्ड पोल्स, राइट, मैग्नेटिक पोल्स। अर्थ इज ए नेचुरल मैग्नेट। अर्थ का अपना एक मैग्नेटिज्म होता है, उसे हम बाद में समझेंगे, बाद के टॉपिक में। लेकिन अर्थ जो है वो हमेशा मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। आप लोगों ने देखा होगा कंपास जो होता है वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाके रुकता है। कंपास की हेल्प से ही, यानी मैग्नेटिक कंपास की हेल्प से ही हमें पता लगता है डायरेक्शंस का, नॉर्थ या साउथ का, ठीक है। द रीजन अराउंड द मैग्नेट इन विच इट एक्सर्ट फोर्सेस ऑन अदर मैग्नेट एंड ऑन ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ आयरन इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। हर मैग्नेट के अराउंड जो है वो एक फील्ड जनरेट हो जाता है, जिसके कारण वो मटेरियल्स को, मैग्नेटिक मटेरियल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। उस सराउंडिंग रीजन को कहा जाता है मैग्नेटिक फील्ड। फॉर एग्जांपल ये एक बार मैग्नेट है, तो इसके अराउंड स्पेस है, ये अब उस स्पेस से आयरन को या निकल को या कोबाल्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो उस स्पेस को, स्पेस अराउंड द मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि उसी एरिया से वो मैग्नेटिक मटेरियल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो दीज आर द पॉइंट्स फॉर द मैग्नेटिज्म। नाउ नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट। बार का मतलब होता है एक इस तरीके की शेप, ठीक है ना, इसको कहा जाता है बार। तो इस बार मैग्नेट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, बड़ी सिंपल है, आप लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ी है। अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट अलाइन इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। कोई भी आप मैग्नेट को अगर फ्रीली सस्पेंड कर दें, धागे से बांध दें और उसे सस्पेंड कर दें, तो हमेशा वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकता है। कारण वही है, अर्थ का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो अगर आप मैग्नेट को सस्पेंड करते हैं तो नॉर्थ पोल जियोग्राफिक नॉर्थ की तरफ चला जाता है, और जो साउथ पोल ऑफ मैग्नेट होता है वो जियोग्राफिक साउथ की तरफ अलाइन हो जाता है। नंबर 2, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट्स। साउथ और नॉर्थ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, बट लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करता है, नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा, साउथ साउथ को रिपेल करेगा। थर्ड पॉइंट, मैग्नेटिक पोल ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अगर किसी मैग्नेट में साउथ पोल है तो उसका नॉर्थ पोल भी जरूर होगा, अगर नॉर्थ है तो साउथ भी जरूर होगा। अगर आप मैग्नेट को काटेंगे, तोड़ेंगे, तब भी उसके दो दो पोल बन जाए, 2 टुकड़े हो गए मान लिया, तो एक टुकड़े का नॉर्थ और साउथ होगा, दूसरे का भी नॉर्थ और साउथ होगा, उनको आप अलग नहीं कर सकते। अगर नॉर्थ है तो साउथ भी होगा, साउथ होगा तो नॉर्थ भी होगा, राइट। नेक्स्ट है, मैग्नेट कैन इंड्यूस मैग्नेटिज्म इन अदर मैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, कोई भी मैग्नेट दूसरे मटेरियल को यानी मैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटाइज कर देता है। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा ऑलपिन बॉक्स होता है, ऑलपिन बॉक्स के टॉप पार्ट पे एक रिंग मैग्नेट होती है। तो क्या करता है, जो अंदर की ऑलपिन्स होती हैं
जो ऑफिस पिन्स होती हैं उनको भी मैग्नेट बना देता है। तो जो भी मैग्नेट के कांटेक्ट में आएगा, अराउंड आएगा, उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इंड्यूस हो जाती है, यानी वो भी मैग्नेट बन जाता है। अब वो लाइट मैग्नेट बने या हैवी मैग्नेट बने, वो मैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। अगर वो मटेरियल फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है तो जल्दी से मैग्नेटाइज हो जाता है, लेकिन अगर वो मैग्नेटिक मटेरियल डाई या पैरा है तो लाइटली, स्लाइटली या वीकली मैग्नेटाइज होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट है इट अट्रैक्ट्स मैग्नेटिक सब्सटेंसेज। ये तो आपको पता ही है कि कोई भी मैग्नेट जो है, कोई भी बार मैग्नेट जो होता है वो मैग्नेटिक सब्सटेंसेज को अट्रैक्ट करता है। यानी मैग्नेटिक सब्सटेंस का मतलब जैसे कोबाल्ट, निकल और आयरन, इनमें जो भी सब्सटेंस होगा उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट। नाउ रिपल्सन इज द श्योरेस्ट टेस्ट फॉर मैग्नेटाइजेशन। रिपल्सन जो होता है वो वाला जो टेस्ट होता है वो मैग्नेटाइजेशन का, उसे आप देखें। अ मैग्नेट अट्रैक्ट्स आयरन रॉड एज वेल एज अपोजिट पोल ऑफ अदर मैग्नेट, देयरफॉर इट इज नॉट अ श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ magnetization, right? But if the rod is repelled with strong force by the magnet, then rod is surely magnetized. ठीक है। Now representation of uniform magnetic field। अब जैसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, देखिए बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों में एनालॉजी होती है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड किससे आता है? चार्ज से। मैग्नेटिक फील्ड किससे आता है? करंट से। यानी इलेक्ट्रिक फोर्स का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सोर्स है वो है चार्ज, और मैग्नेटिक फील्ड का जो सोर्स है वो क्या है बेटा? करंट। तो जहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगी इसका मतलब उसका जो बेसिक है, जो उसका कॉज है, वो करंट होगा, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सोर्स है वो चार्ज होता है। तो जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाते थे पैरेलल इलेक्ट्रिक लाइंस से, इसी तरीके से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को हम किससे दिखाएंगे? पैरेलल मैग्नेटिक लाइंस से। तो दिस इज द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए ये मैग्नेटिक लाइन है, तो मैग्नेटिक लाइन कहाँ से आई होंगी? नॉर्थ पोल से। तो इधर इसका मतलब फ्लैट नॉर्थ पोल, और जा किधर रही है? इधर। इसका मतलब इधर कैसा पोल है? फ्लैट साउथ पोल। तो ईच मैग्नेटिक लाइन ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट एट साउथ पोल, और ये हमेशा 90 डिग्री पे ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती हैं। तो ये लाइंस कैसी हो जाएंगी? पैरेलल है। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। नाउ दिस इज, आप यहाँ पे देख रहे हैं, दीज आर क्रॉसेस। इसका मतलब मैग्नेटिक लाइन किधर को जा रही है? अंदर की तरफ, पेनिट्रेट कर रही है। तो दिस इज द यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन इनवर्ड डायरेक्शन। ये है इनवर्ड। इनवर्ड के लिए आप क्या करेंगे? सर्किल के अंदर क्रॉस बना देंगे। तो इसका मतलब मैग्नेटिक लाइन पेनिट्रेट करके जा रही है इनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है ना। तो सर्किल न भी बनाए तो इस तरीके के क्रॉसेज आप बना सकते हैं। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा तो कैसे दिखाएंगे? उनको दिखाएंगे डॉट से। इसका मतलब मैग्नेटिक लाइन बाहर की तरफ आ रही है, आउटवर्ड डायरेक्शन में। आउटवर्ड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को दिखाने के लिए आप सर्किल के अंदर डॉट बना सकते हैं, या फिर केवल डॉट्स बना सकते हैं। अब देखिए इन डॉट्स के बीच में एक इक्वल स्पेस है ना, इक्वल स्पेस। इक्वल स्पेस है, इसका मतलब मैग्नेटिक लाइंस क्या है? आपस में पैरेलल है। सिमिलरली इस केस में अगर आप देखें तो यहाँ पे भी ये जो क्रॉसेज हैं वो इक्वल डिस्टेंसेज पे हैं। इसका मतलब ये भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि स्क्रीन के बाहर की तरफ नॉर्थ पोल है, अंदर की तरफ साउथ पोल है। यहाँ पे पीछे की तरफ जो है वो हो गया नॉर्थ पोल, अब फ्रंट साइड में हो गया साउथ पोल। तो मैग्नेटिक लाइन बाहर की तरफ आ रही। इस तरीके से आप दिखाते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।